Bismillahirrahmanirrahim. As you all know that we have studied all the basics about sets. So in this lecture we will try to solve exercises. Okay. Exercise 1.2. First of all, we will solve exercise 1.2 of sets, chapter 1. Okay. So you can refer New Get Ahead Mathematics of Class 6, Oxford. So first of all, we will solve question number 1. So question number 1, it is pick out the finite and infinite sets from the following. So part A is set A is equals to 1, 2, 3, 4, so on, and it continues till 20. So as we know that in this element the set starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So this set has an ending. So it means it has 20 elements in it, and we can count all 20 elements. So this set is a finite set. Okay, I'll write the answers with the blue. Okay, it is finite. Now let's move towards the next part B. Set B is equals to, what is it? Odd number greater than 31. Odd number greater than 31. So as we know that odd numbers 1, 3, 5, 7 n, but यहाँ mention है कि odd numbers greater than 31 से ज़्यादा, 31 से बड़े ग्रेटर odd numbers. तो यहाँ ये mention नहीं है कि सेट स्टार्ट तो हो रहा है 33 पे. ओके 33 पे ये सेट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड कहाँ हो रहा है ये हमें नहीं मालूम कि इसकी एंडिंग कहाँ है. तो इसलिए ये है हमारा एक तरह से बल्कि इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हमें इसकी एंडिंग नहीं पता. Okay, now part C. Set C equals to 0, 2, 4, 8. So इस सेट में आप सब देख सकते हैं जैसे 0, 2, 4, 8, इसके अंदर सिर्फ 4 elements हैं. We have only 4 elements in set C, so we can count them. This set is also a finite set. Part D. D equals to multiples of 3. Set D is equals to multiples of 3. Okay. So what does it mean? Multiples of 3. The numbers which can be divided by 3. Okay. 3 3 is 9, 3 4 is 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 3 6 is 18, like multiples of 3. And it is not mentioned that greater than, less than. This set is also an infinite set because there are unlimited multiples of 3, unless we are mentioned or we are given some boundary line like. Now move towards part E. Set E equals to all planets. All planets. So as we all guys know that there are 8 planets in the universe. Like what are these? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So there are 8 planets. None other. So this set is also a finite set because there are only 8 planets in the universe. In this entire universe there are only 8 planets. Okay, now let's move towards set F. What is set F? Set F equals to English alphabets. Okay, English alphabets.
Now you people tell how many alphabets are there in English language. Okay, I think there are 27 alphabets like A, B, C, D, E, F, G, H and so on. So these are alphabets, we can count them. We can count A to Z. So this set is a finite set. Now set, let's move towards the part G. What is there in set G? Set G equals to fruits with seeds. Okay, fruits with seeds. So we know that how many fruits have seeds. Like mango has no seed, mango, apple, banana. Banana has no seed, I think. Mango, apple, like apricot, peach. We can count them. So this set is a also finite set. Okay, fruit with seeds, it is a finite set. Now let's move towards part H. This is the last part of this question. What's set H? Set H is equals to all even numbers. Okay, set H equals to all even numbers. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14, all even numbers. What does it mean? All even numbers means we are not mentioned, we are not given a boundary line or an ending. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, it goes so on. So this set is a infinite. This set is an infinite set. Okay, so we are done. So okay, let's move towards question number 2. What does question number 2 say? Pick out the empty sets from the following. Part A is set of cows with 6 legs. Set of cows with 6 legs. जैसे कि आप सब जानते हैं कि बैल, गाय, काऊ की कितनी लेग्स होती हैं? Every cow has 4 legs. So there ऐसी कोई गाय नहीं होती जिसकी 6 टांगे हों, जिसकी 4 legs, 6 legs हों. So this set is to be called an EMPTY, an empty set or a null set. ठीक है? Okay, let's move towards part B. What does part B says? Set of triangles. Set of triangles with 3 sides. So every triangle has, as we know, as every triangle has 3 sides, 1, 2 and 3. Like I'll draw a triangle for you, 1, 2 and 3. Every triangle has 1, 2, 3 side. So this set is also not an empty set. This is a, like, it's a normal set, it's not an empty set. So I'll take which set is the set which is an empty. I'll take it, like set A is an empty, set B is not. So let's move to a set C. Let's see if it is negative or not. Set of history books. Part C is set of history books. So just check your bag. You might have an history book in it. You might have a history book in it. So every bag has history book in it. So this set is not an empty set. This set is a normal set. Okay, so this is not an empty set. Move towards part D. What does part D say? Set of male doctors in a hospital. Set of male doctors in a hospital. Okay, set of male doctors in a hospital. Male doctors in a hospital. In a hospital, like I will not write complete. So there are male doctors, there are female doctors in a hospital. So this set is also a normal set. This is not an empty set. Let's move towards part E. Part E says set of numbers which are positive and negative both. Like either a number is positive,
आइदर नंबर इज पॉजिटिव लाइक +2, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, आइदर इट इज़ +2 और इट इज़ -2, आइदर इट इज़ -4 और इट इज़ +4 और -4। सही है, तो कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता मैथ्स में जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो एक साथ एक वक्त में। सो दिस सेट इज एन एम्प्टी सेट, लाइक आई विल टेक इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट डज पार्ट एफ सेज। पार्ट एफ सेज part F says set of cars having 3 wheels. Set of cars having 3 wheels. Okay. जैसा कि हमें पता है कि 3 व्हील किसके होते हैं, हमें पता है रिक्शा के 3 व्हील होते हैं, लेकिन यहाँ हमसे पूछा हुआ कार्स के बारे में, गाड़ी के बारे में। हमेशा हमें पता है कि गाड़ी के 4 व्हील्स होते हैं। एवरी कार हैज़ लाइक wheel 1, wheel 2, wheel 3, wheel 4. Every car has 4 wheels. 3 टायर किसी कार के नहीं होते, तो ये सेट भी हो गया। दिस सेट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, लाइक आई टेक इट। अब ऊपर आके देख लीजिए, अब सारे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में से सेट ए, सेट ई एंड सेट एफ, ये 3 सेट हैं जो एम्प्टी सेट हैं, बाकी सारे नॉर्मल सेट्स हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, हमें फाइंड आउट करना है कौन से सेट इक्वल है। सेट ए को देख लीजिए, 6, 9, 12 एंड 15 एक सेट ये है। अब इसको हमने कंपेयर करना है इस सेट से, लाइक 12, 9, 15 एंड 6। अब इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या थी कि बोथ द सेट्स हैव एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट। लाइक अब आपको मैं दिखाता हूँ कि दोनों सेट्स में, एक तो सेट्स में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 बोथ द सेट्स हैव 4 एलिमेंट्स इन इट, एंड लाइक 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 15, 9 एंड 12 both the sets have same amount of element and same element, so set A is an equal set. Set A is an equal set. Okay, अब सेट B की तरफ आते हैं। इस पार्ट बी में क्या पूछा गया हमसे, व्हाट इज पार्ट बी। पार्ट बी इज लाइक इसमें फिगर्स दी गई हैं हमें कुछ। फर्स्ट फिगर है ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल, देन अ सर्कल। ओके, सो इसको हमने कंपेयर करना है इस सेट से। इसके अंदर है ट्राइंगल, इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, इट्स अ ट्रेपीजियम। ओके, दिस शेप इज डिफरेंट फ्रॉम रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम एंड अ सर्कल। सो इसमें आपको पता है इससे नंबर एलिमेंट तो 3 है, दोनों में 3 है, लेकिन दिस एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एलिमेंट, सो दिस सेट इज not an equal set. Okay, set B is not an equal set. Okay, set B equal set नहीं है, not, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, not, और यहाँ पे equal को। ओके, ये आपको याद रहेगा इस तरह। जहाँ आपको समझना है वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है, गलत सॉल्व ना कीजिएगा। पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी आपको टेक्स्ट बुक साथ खोलनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक इसके अंदर क्या है, एफ पी क्यू अल्फाबेटिकल लेटर्स है। इस सेट को हम कंपेयर करेंगे। लाइक दूसरा सेट क्या है, पी एफ क्यू, ठीक है, पी एफ क्यू। अब आप खुद देखें एलिमेंट्स कितने हैं दोनों में, 1 2 3 1 2 3। अब F इसके अंदर भी है, P इसके अंदर भी है, Q भी इसके अंदर, तो सेट C इज एन इक्वल सेट। ओके, इक्वल को हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये सेट इक्वल है, ठीक है। सो सेट ए एंड सेट C एंड सेट A आर इक्वल सेट्स। ये आपके दो आंसर्स हैं, ठीक है।
Now let's move towards question number 3. What does question number 3 says? Part A. Okay, part A has which of the following pair of sets are equal? Okay, so as I've defined in my last lecture, the definition of equal sets and equivalent set. तो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन आपको अगर रिवाइज हो, आपको याद हो, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं एंड इक्विवेलेंट हैं. बाकी आई विल सॉल्व इट. लाइक देखिए, इक्वल सेट्स होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स की क्वांटिटी भी सेम हो और एग्जैक्ट एलिमेंट्स भी सेम हो दोनों सेट्स में. लाइक इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4. इसमें 1 2 3 4 बोथ हैव सेम 4 एलिमेंट्स. तो ये सेट इक्विवेलेंट तो है, लेकिन हमें इक्वल देखना है. लाइक 6 इसके अंदर भी है, 6 सेट बी में भी है, 9 सेट ए में भी है, 9 सेट बी में भी है, 12 सेट ए में भी है, 12 सेट बी में भी है, 15 एंड 15 यहाँ भी है. तो सेट ए इज एन इक्वल सेट. ओके, अब आपको इक्वल की डेफिनेशन याद हो गई, जिसमें दोनों चीज़ें हों. लाइक क्वांटिटी भी सेम हो मेंबर्स की और मेंबर्स भी सेम हो. तो नेक्स्ट पे आ जाए. नेक्स्ट है जैन फैब मार्च. जनवरी फरवरी मार्च. एंड एज कम्पेयर टू दूसरे सेट में जनवरी फरवरी एंड अप्रैल. अब देखिए, इसके अंदर क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन सेट्स की जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी अप्रैल, तो दिस सेट इज नॉट एन इक्वल सेट, नॉट इक्वल. ठीक है, ये इक्वल नहीं है. अब सी की तरफ आ जाए. पार्ट सी. व्हाट इज पार्ट सी से? पार्ट सी सेज एफ पी क्यू एंड पी एफ क्यू. सो पी एफ, इसमें देखिए एफ 1 2 3 1 2 3 बोथ हैव 3 एलिमेंट्स. एफ यहाँ पे भी है, लाइक कलर ब्लू. एफ इसमें भी है, एफ यहाँ पे भी है, पी क्यू एंड क्यू. तो सेट सी इज एन इक्वल सेट. इक्वल को हाईलाइट करते हैं, इक्वल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हुआ. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 says which of the following set or identify the equivalent sets. इक्विवेलेंट. ठीक है, पार्ट ए क्या है? 0 1 2 3 एज कम्पेयर टू ए बी सी डी. एलिमेंट कितने हैं दोनों सेट्स में? 1 2 3 4 1 2 3 4. सो दिस सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इसके अंदर हमने एलिमेंट्स तो देखने हैं, सिर्फ एलिमेंट्स की क्वांटिटी देखनी है. तो सेट ए इज एन इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट को हाईलाइट कर दें. तो अब बी की तरफ आ जाए. पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी में हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ फिगर्स हैं. ओके, लाइक शेप्स हैं, मैथमेटिकल शेप्स. ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल. एंड दूसरे सेट में है ट्राइंगल, अ ट्रेपीजियम एंड ऑल्सो अ सर्कल. तो अब हम यहाँ देखें तो ट्राइंगल, लाइक इसमें भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3. इसमें भी 3 एलिमेंट है. तो दिस सेट बी इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट को हाईलाइट कर दें हम, ऑल्सो एन इक्विवेलेंट सेट. ठीक है, आपका इसका आंसर कंप्लीट हुआ. पार्ट सी. व्हाट इज पार्ट सी से? पार्ट सी की तरफ आए तो नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5. अब देखिए, नंबर्स ग्रेटर देन 1, इसलिए 1 कंसीडर नहीं है. लाइक 2 3 4 एंड लेस देन 5. ओके, 2 3 4 यहाँ सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे और इसके अंदर बुक, पेंसिल, इरेजर.
Now let's move towards question number 5. Okay, what does question number 5 say? Question number 5 says let, like मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, let x equals to सेट है 9 10 11 12 13 14 15 16 and so on till 20. लाइक ये एलिमेंट्स है x सेट में. अब पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सबसेट्स ऑफ x. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबसेट्स ऑफ x. ये जो x है इसके सबसेट्स कौन से हैं. ठीक है, अब इसके सबसेट्स देखते हैं. अब आप ये चेक कीजिए. पार्ट ए क्या कह रहा है, a इक्वल्स टू set of numbers between 11 and 17. Okay, set of numbers between 11 and 17. ओके, अब इस सेट में कौन से नंबर्स आएंगे 11 एंड 17 के बीच में. लाइक इसके अंदर आएंगे 12 13 14 15 एंड 16. अब ये दोनों जो हैं, ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं, ये लाइक 12 13 14 15 16 एंड 17 आएगा इस पोजीशन पे. तो ये सारे एलिमेंट्स सेट एक्स में मौजूद हैं. हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर मौजूद हैं. तो ये भी हुए दीज ऑल एलिमेंट्स सेट ए. वी विल राइट एट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स. ओके, एज ए इक्वल्स टू ये वाला सेट है ए. हमारा ये सेट है सेट ए. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है बी. पार्ट व्हाट इज पार्ट बी. पार्ट बी हम देख लें यहाँ पे. पार्ट बी इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 13 एंड लेस देन 9. अब आप खुद देखेंगे तो सेट ही नहीं हुआ. ग्रेटर देन 13 14 15 17 18 19 20 को क्रॉस कर रहे हैं. एंड लेस देन 9, व्हाट इज लेस देन 9 8 7 6. एंड हमारा वहाँ पे आप सेट देखिए, मैं ऊपर करता हूँ, आप सेट देखिए. हमारा सेट शुरू कहाँ से हो रहा है 9 से. सेट हमारा 9 से शुरू हो रहा है. तो ये भी हमारा ये आंसर होगा गलत. लाइक सेट बी होगा, लाइक बी इज नॉट अ सबसेट. ये आप सिंबल देख लें लास्ट लेक्चर में. सेट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स पार्ट सी. पार्ट सी देख लें आप. पार्ट सी क्या कहते हैं, सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 19. ओके, ग्रेटर देन 9 क्या होंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रेटर देन लेस देन 19. ओके, तो यहाँ हमारे एंड हो जाएगा ये वाला सेट. सेट इक्वल टू सेट सी है. ठीक है, पहले लिख दें की बात है. 1 2 3 4 7 जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सब एलिमेंट्स हमारे सेट एक्स में मौजूद है. लाइक देखिए 10 11 12 13 14 15 16 18 19 18 तक मौजूद है. तो इसका आंसर भी यही होगा कि सेट सी इज अ सबसेट ऑफ एक्स. ठीक है, अब आ जाए पार्ट डी की तरफ हम. व्हाट डज पार्ट डी सेज. सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ 3 4 and 5. set of perfect squares, okay, of 3 4 and 5. अब 3 के perfect squares 3 1 3 3 3 9 3 3 9 9 3 27 27 3 81. ये 20 को क्रॉस कर रहे हैं. इसी तरह 4 के भी और 5 के भी. तो इसका आंसर होगा सेट डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स. ओके, पार्ट ई की तरफ आ जाए. पार्ट ई से सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 10. अब देखिए 1 and 10 के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो होंगे हमारे 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 1 and 10 के बीच में ये नंबर्स आते हैं. तो ये हमारे सेट एक्स का पार्ट नहीं है. हमारे सेट एक्स में नहीं आते. सेट एक्स तो शुरू ही 9 से हो रहा है और ये सेट 9 पे ख़त्म हो रहा है. तो
इसका भी यही आंसर होगा, सेट ई इज नॉट द सबसेट ऑफ एक्स। ओके, तो यह हमारा क्वेश्चन 5 भी खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है इफ ए इक्वल्स टू, लाइक सेट ए गिवन है हमें क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमारे पास सेट ए गिवन है एंड सेट बी भी हमें गिवन है। ओके, सेट बी इक्वल्स टू 8 9 10। अच्छा, सेट सी भी है एंड सेट सी इक्वल्स टू 3 4 5। अब हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, ट्रू और फॉल्स, ये हमें प्रूफ करनी है। नीचे जो अभी हमें कंडीशंस गिवन है उसके अंदर अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पहली कंडीशन क्या है? ए, पार्ट ए है हमारे पास, लाइक ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आने चाहिए, तब होगा ए सबसेट ऑफ बी। तो ये तो गलत है। अब ए में कितने 10 एलिमेंट्स हैं टोटल और बी में सिर्फ 8 हैं। बी के एलिमेंट्स ए में आते हैं, ए के एलिमेंट्स बी में नहीं आते, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट बी की तरफ आए। स्टेटमेंट बी क्या है? सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी में एलिमेंट्स क्या हैं? 3 4 5 और ये 3 4 5 हमारे 3 4 5 सेट ए में मौजूद हैं, तो हमारी स्टेटमेंट बी जो हो गई, बी है हमारी ट्रू। ठीक है, अब और हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम हमारा सेट को पार्ट बी देख लें, पार्ट सी सॉरी, पार्ट सी हमारा है, क्या कह रहा है? 6 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। ओके, 6 इज अ, ये मेंबर, ये देखिए ये सिंबल है मेंबर का, 6 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। लाइक ऊपर देखें आप, सेट ए में 6 मौजूद है जी, सेट ए में 6 है, तो हम इससे कहेंगे ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बिकॉज 6 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में क्या है? पार्ट डी में बी एंड सी आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या थी? कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। सही है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, एलिमेंट सेम होना हो, लेकिन सेट बी में कितने 1 2 3 एंड सेट सी में 1 2 3, दोनों में 3 3 एलिमेंट्स है, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी ट्रू बिकॉज दोनों में 3 3 एलिमेंट्स है, हेंस सेट बी एंड सेट सी आर इक्विवेलेंट सेट्स। स्टेटमेंट ई की तरफ आते हैं, बी इज इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू सी, दोनों के एलिमेंट तो आपस में डिफरेंट है। आप यहाँ देखिए ऊपर 8 9 10 है, 3 4 5 है, तो हम इसको कहेंगे सेट बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। अब आ जाए हम स्टेटमेंट एफ की तरफ। स्टेटमेंट एफ क्या कह रहा है? ए इज एन इनफाइनाइट सेट, ए इज एन इनफाइनाइट सेट। अब एक ए सेट पे एक नज़र मारता हूँ, ऊपर एक नज़र देखिए 1 2 3, इसके अंदर स्टार्ट हो रहा है सेट 1 पे और एंड हो रहा है 10 पे। इसके अंदर 10 एलिमेंट है, हमें पता है 10 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी हो गई लाइक फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट। ठीक है, बिकॉज सेट ए इज़ अ फाइनाइट सेट। अब आ जाते हैं हम जी पे। पार्ट जी कह रहे सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। देखिए आप पढ़ें, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ये, हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि जो इसका बंद जो क्लोज पार्ट है, इस शेप का क्लोज पार्ट सी की तरफ है, तो हम पढ़ेंगे सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ऊपर आके हम देखते हैं सी 3 4 5, 3 4 5 दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, अब एच की तरफ आए। पार्ट एच, स्टेटमेंट एच क्या कह रही है?
B is a finite set. B is a finite set. अगर B के एलिमेंट्स देखते हैं, B सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? 8, 9, 10, ओनली 3 एलिमेंट्स हैं. हम उन एलिमेंट्स को काउंट भी कर सकते हैं. तो B इज अ फाइनाइट सेट. ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है. अब पार्ट आई देखते हैं. पार्ट आई में क्या है? B इज अ सबसेट ऑफ A. B is a subset of A. अब B is a subset of A. अब यहाँ भी देखना पड़ेगा कि B के एलिमेंट्स अगर A में हैं तो ये B सबसेट होगा. 8, 9, 10, 8, 9, 10 और 8, 9, 10 यहाँ पर तीनों मौजूद हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि B इज अ सबसेट ऑफ A. ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू. ठीक है. अब पार्ट जे लास्ट पार्ट है, उसकी तरफ आते हैं. पार्ट जे क्या था? पार्ट जे हम पढ़ते हैं बुक से. C इज अ सबसेट ऑफ B. C इज अ सबसेट ऑफ B. ऊपर दोनों सेट्स को एक नज़र देख लें हम. अब हम देखते हैं यहाँ पे C में है 3, 4, 5 एलिमेंट्स. 3, 4, 5 एंड सेट B में है 8, 9 एंड 10. ठीक है. एक में है 3, 4, 5, एक में दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं हैं. तो हम इसको कहेंगे ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि इक्वल सेट्स में सेट C के एलिमेंट सेट B के अंदर मौजूद नहीं है. दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है. एक में 3, 4, 5 है, एक में 8, 9, 10 है. इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई फॉल्स. तो ये बताया. तो हमसे क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है. ठीक है. तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने सॉल्व कर लिया है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इफ A इक्वल्स टू A, B, C, D, E एंड B इक्वल्स टू एंड B. सेट B में क्या है? सेट B इक्वल्स टू C, D. सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं इसके. अब हम पहली स्टेटमेंट देखते हैं. हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. तो हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखते हैं पहले सारी. अब लाइन से पहले सारी फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी कर लूँ. A डैश B. B क्या है? C डैश A. C क्या है? B डैश A. D क्या है? A स्मॉल a डैश B. ओके. इसे हम बारी बारी सॉल्व करते हैं. अब देखिए आप, सेट A B का क्या है? सेट B के अगर सारे एलिमेंट A में आते हैं तो कहलाएंगे सेट B इज अ सबसेट ऑफ A. लेकिन हमें पूछा है A B का क्या है, तो हम कहेंगे कि A इज अ सुपर सेट ऑफ B. ओके. सुपर सेट. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ से इस तरफ भी पढ़ सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A. मैं लिख देता हूँ, B इज अ सबसेट ऑफ A और A इज अ सुपरसेट ऑफ B. ठीक है. अब पार्ट B, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर B क्या कह रही है हमें? स्मॉल c डैश A. अब स्मॉल c देखिए, स्मॉल c तो यहाँ भी है और यहाँ भी है. सेट A में भी और सेट B में, लेकिन हमसे यहाँ सेट A का पूछा गया है. सेट एलिमेंट C इज डैश ऑफ A. अब एलिमेंट C जो है, ये एलिमेंट C सेट A में मौजूद है, तो हम इसे लिखेंगे सेट C इज अ मेंबर ऑफ सेट A. एलिमेंट C इज अ मेंबर ऑफ सेट A. अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए. नेक्स्ट पार्ट में है B डैश A. B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद है, तो हम कहेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A. जिस तरह हमने ये पढ़ा था हम इसको उल्टा लिख देंगे, तो B इज अ सबसेट ऑफ A. अब पार्ट D आ जाए. पार्ट D क्या कह रहे? A. अब स्मॉल a है तो मतलब ये एलिमेंट है कोई. अगर कैपिटल A होता है तो मतलब ये सेट का नाम है, लेकिन स्मॉल a है, स्मॉल लेटर है, इसलिए इसका मतलब ये एलिमेंट है. अब A डैश B. ओके. A डैश B का मतलब है स्मॉल a. अब यहाँ सेट B
मतलब मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब हम सेट बी को देखेंगे, इस सेट को देखेंगे खाली। सेट बी, इसके अंदर क्या है, सिर्फ दो एलिमेंट्स है, सेट सी एंड सेट एलिमेंट सी एंड डी। तो एलिमेंट ए इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एलिमेंट ए इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट बी। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्लोज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 2 के साथ। ओके, फी अमान अल्लाह।